Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajakacharya. Astottara Shashi Shiva Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON PPT Phanacharya Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrinda ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Nitai Go Premanande Haribo. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapadakamalam Shri Guruna Vaishnavangsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasadeshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, text number 14. Krishna is the source of all incarnations. Rishibhi Yachito Bheje Navamam Parthivam Vapu Dugdema Oshadhi Vipra Tenayam Sa Ushattama Rishibhir Yachito Bheje Navamam Parthivam Vapu Dugdemam Oshadhir Viprat Tenayam Sa Ushattama Rishibhir Yachito Bheje Navamam Parthivam Vapu Dugdemam Oshadhir Vipra
तेन यां सा उषत्तमा ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धेमावोषधीर्विप्र तेन यां सा उषत्तमा ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु तेनायं सा उषत्तमः ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमां पार्थिवं वपु दुग्धेमावोषधीर्विप्रा तेनायं सा उषत्तमः ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धेमावोषधीर्विप्र तेन यां सा उषत्तमा ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धेमावोषधीर्विप्र तेन यां सा उषत्तमः मान्य ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमां पार्थिवं वपु दुग्धेमावोषधीर्विप्र तेन यां सा उषत्तमा ऋषिभिः by the sages yachitah being prayed for bheje accepted navamam the ninth one parthivam the ruler of the earth vapuhu body dugdha milking imam all these Oshadhi, products of the earth. Vipraha, O Brahmanas. Tena, by. Ayam, this. Sa, he. Ushattama, beautifully attractive. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. O Brahmanas, in the ninth incarnation, the Lord, prayed for by sages, accepted the body of a king, Prithu, who cultivated the land to yield various produce, and for that reason, the earth was beautiful and attractive. तो ये सुखदेव गोस्वामी जी समरी में भगवान के सब इनकारनेशंस के बारे में बताते हैं। तो आज चर्चा है नाइन्थ इनकारनेशन। तो प्रभुपाद जी पर्पट में भी एसेंस में देते हैं, लेकिन पृथु महाराज का जो स्टोरी है वो लेटा इन द भागवतम डिटेल में आता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान जिन्हें प्रेड फॉर बाय द सेजेस, जिनको साधु संत लोग प्रार्थना अर्पण करते हैं। एक्चुअली ओनली डिवोटीज नो हाउ टू ऑफर प्रेयर्स। प्रेयर्स में सब लोग जानते हैं ना, कितना स्क्रिप्चर्स डिस्क्राइब करता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेयर्स, 4 प्रकार के प्रार्थनाएं।
सबसे पहला है प्रेयर्स ऑफ रिक्वेस्ट। प्रार्थना करते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए। जो प्योर डिवोटीज है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है। प्योर डिवोटीज केवल भगवान का कमल चरण की सेवा चाहते हैं। गोपीज भगवान से ऐसे नहीं प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे, ऐसे भी नहीं बोलते कि भगवान मुझे अपन कमल चरण के सेवा देना। वो केवल भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू सर्व कृष्णा। दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू सर्व कृष्णा। कभी कभी हम लोग बोलेंगे हमको कोई सेवा नहीं दिया है प्रभु जी। सेवा देने की बात नहीं है, सेवा लेने की बात है। भगवान तो बहुत दे सकते हैं, भगवान के पास सब कुछ दिया हुआ भगवान देते हैं, हम लोग सेवा लेंगे। तो प्रेयर्स ऑफ रिक्वेस्ट दूसरा है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेयर्स ऑफ रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं तो भगवान से मानते हैं कि हम लोग के दुख दूर रहे। लेकिन दिस इज ऑल्सो अ प्रेयर, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताया 4 प्रकार के लोग भगवान को शरणागत होते हैं ना। तो उनमें से एक जो होता है जो धन चाहता है या अपन बीमारी से छूटना चाहता है, दे ऑल्सो कम एंड प्रे टू कृष्णा। सो दैट्स ऑलराइट, दैट्स ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे भागवतम जो इट्स अबाउट प्योर डिवोशनल सर्विस, तो रिलेटिवली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। तो प्रेयर्स ऑफ रिक्वेस्ट है, फिर दूसरा है प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग। तो रिक्वेस्ट करते हैं फिर भगवान देते हैं, तो फिर हम लोग थैंक करेंगे भगवान को, थैंक यू फादर फॉर द डेली ब्रेड। तो भगवान को थैंक्स करते हैं। ऐसे नहीं है कि थैंक करना कोई बुरी बात है, आप गलत मत समझिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर कोई थैंक करे फॉर द डेली ब्रेड तो वो गलत बात है। ये बहुत अच्छा बात है कि यू आर एक्चुअली एक्नॉलेजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम। जो भगवान हमको पालन पोषण करने वाले हैं उनको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। तो स्पेशली ईसाई धर्म में है ना, क्रिश्चियनिटी में है, दे ऑलवेज थैंक द लॉर्ड, थैंक द लॉर्ड फॉर द लाइफ, थैंक द लॉर्ड फॉर bless the Lord to all the hands who have prepared the feast। हम लोग बहुत कमती टाइम इसे सोचता ना, we don't, हम लोग कभी कभी हम लोग आके सुमुखा प्रभु, when we are praying to the deities, how many of us ever pray that the Lord please be very kind and merciful and bless the pujari who has dressed the deities today? That is also Krishna's, this is also a sign of a devotee. When you are praying for, you thanking Krishna and thanking the devotees who have dressed Krishna so nicely and attractively. This is a good realization ना। हम लोग कभी नहीं ऐसे प्रे करता, हम लोग कभी नहीं थैंक करता कोई कहे कि थैंक यू, यू नो यू हैव कुक्ड वेरी नाइसली फॉर कृष्णा, इज अ वंडरफुल ऑफरिंग मेड फॉर कृष्णा। एवरी टाइम हम लोग प्रेयर मतलब खाली अपन बारे में सोचता है। भगवान हमें आशीर्वाद देना कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें और सुंदर से ड्रेसिंग करी। We only want to ask about our own self। तो प्रेयर्स ऑफ थैंक्स गिविंग, फिर रिक्वेस्ट थैंक्स गिविंग, तीसरा फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, भगवान से क्षमा करना। उल्टा हम कर देते हैं तो भगवान हमें क्षमा कर देना, कॉन्फेशन करना भगवान की तरफ, ये गलती हो गया, ये पाप हो गया मुझसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कृष्ण वो भी सुनते हैं, कृष्ण वो भी सुनते हैं। अगर नहीं सुनते तो भगवान नहीं बोलते सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सो कृष्ण ऑल्सो ही इज द प्रेयर्स ऑफ फॉरगिवनेस। और लास्ट है प्रेयर ऑफ ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। थैंक्स गिविंग में ग्रेटिट्यूड भी आता है। कभी कभी लोग कहते हैं प्रेयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ना, कि हम लोग भगवान के आभारी हैं। तो ऐसे लास्ट है प्रेयर्स ऑफ ग्लोरिफिकेशन, केवल भगवान की प्रशंसा करना। प्रभु जी एग्जाम्पल देता है, भाई कोई बड़ा राजा से कुछ मांगो तो उसके बड़ाई करो ना, आपके राज्य बहुत अच्छा है, आप इतना प्रसाद बटाता है आपके ऐसे, तो तुम पर्सन के ग्लोरीफाई करेगा, मतलब राजा के ग्लोरीफाई करेगा, राजा के फेवर मिल जाए। तो वही रकम कृष्णा कहता तो सबसे बेस्ट प्रेयर जो है वो प्रेयर्स ऑफ ग्लोरिफिकेशन है। श्रीमद् भागवतम प्रेयर्स ऑफ ग्लोरिफिकेशन है। बाय टॉकिंग अबाउट प्रहलाद महाराज, हु इज गेटिंग ग्लोरिफाइड? लॉर्ड नरसिंह कहते कृष्ण ग्लोरीफाई होता है कि भक्त को बचाने के लिए भगवान 84 लाख योनि में से जो योनि नहीं है, हाफ मैन हाफ लायन, भगवान वो बना लेते हैं। जब भगवान हिरण्यकशिपु, भागवतम में आप पढ़ेंगे तो हिरण्याक्ष का स्टोरी दिया, ही स्टोल द अर्थ एंड हिड इट अंडर द वाटर,
तो भगवान बड़ा रूप में आए। तो किसके ग्लोरिफिकेशन है? भगवान के ग्लोरिफिकेशन है। कृष्णा अगेन 84 लाख योनि में से जो लोवेस्ट काइंड ऑफ योनि है, भगवान वो स्वीकार कर ले। तो कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन है। भागवतम इज कंप्लीटली फुल ऑफ ग्लोरिफिकेशन। द पांडवस गो थ्रू ऑल द ट्रबल्स। ग्लोरिफिकेशन किसके? लॉर्ड कृष्ण के। माता कुंती बोले कि व्हेन वी आर इन ट्रबल यू आर विद अस, व्हेन वी नाउ हैव द ऑपुलेंस ऑफ हस्तिनापुर यू आर गोइंग, सो देयरफॉर लेट ऑल द कैलेमिटीज कम ओवर अस अगेन। ये प्योर डिवोटी के प्रेयर है ना। तो पॉइंट मैं यहाँ से पिक कर रहा था कि भगवान जो है द लॉर्ड प्रेड फॉर बाय सेजेस। सो ये हम लोग के सब के हम लोग सब थोड़ा थोड़ा कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करता है तो एटलीस्ट हम लोग सेंटली पाथ पे है। तो अलग अलग लेवल पे, कोई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के साधु है। आप सब लोग साधु है। तो साधु के ही एक क्वालिटी है, he offers prayers. You must go, whenever you come before Krishna, you come before the deities, you must offer some prayers. कुछ नहीं जानता है prayers, तो मैं सोच रहा था जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लिखे से ना, अगर एक को प्रेयर नहीं जानता है तो खाली उन लोगों के रिपीट करो। एक बहुत सुंदर प्रेयर है, बोले नरोत्तम दास बोले गौरंगा बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा। तो भगवान के प्रे करो। हम लोग नहीं जनता करेंगे तो नरोत्तम दास ठाकुर जो बोली से उसके रिपीट करो। विषय अर कबे निताई चंद करुणा होइबे, संसार बसन मोरा कबे तुच्छ होइबे। हम नहीं जानता भगवान से कौन सी प्रे करो तो रिपीट करो। तबे से तबे यूजुअली टेम्पल्स में ऐसे रेवे ना कि आफ्टर दर्शन देन देयर इज वन वैष्णव भजन सेंग। वीर कृष्ण महाराज आते हैं, हरदम एक भजन गाते हैं। Why? Because you are actually, if you don't, not that Maharaj नहीं जानते हैं, but just setting an example that actually you should offer prayers too. You should offer prayers. So तबे से अच्छा है कि different भजन स्लोगन कंठस्थ कर लो, then कुछ नहीं तो भगवान के सामने से गुनगुना, you are making a prayer. तो we must always pray. Prayers are very powerful. Prayers are very powerful. जैसे डिवोटीज लोग फास्टिंग करें, निर्जल फास्टिंग करें तो राधा रानी के प्रे करें ना, प्लीज गिव मी द एबिलिटी to be able to fast for Krishna's pleasure. एकादशी क्यों करते हैं? For Krishna's pleasure. Why do we give up eating and as much as sleeping on Ekadashi? So that we give pleasure to. By tapasya, Krishna becomes pleased. तुष्यंती क्या कहते हैं? आशु जनार्दना दया सर्वभूतेषु। भागवतम में एक वर्स है, वो कहते हैं कि बाय डूइंग दिस एक्टिविटीज देन जनार्दन बिकम्स वेरी प्लीज। सो ऑफरिंग प्रेयर्स कृष्ण बिकम्स प्लीज। तो तभी से यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेजेस जो है, तो हम लोग सब लोग छोटा सेजेस लोगन हैं, तो हम लोग के सबके मांगो प्रेयर्स बोलो भगवान के। प्रेयर्स नहीं बोलेगा तब नहीं। एक तो यूनिवर्सल प्रेयर हम लोग के दे दिया है चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ कृष्णा, ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन द लॉर्ड्स सर्विस। भगवान के सेवा के हम लोग प्रार्थना करता है। तो अगेन हम लोग देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ना, हम देख सकते हैं द होल चांटिंग इज अबाउट, इज ऑफरिंग प्रेयर फॉर सर्विस, इज ऑफरिंग प्रेयर। द चांटिंग इज एक्चुअली ऑफरिंग प्रेयर। कृष्ण's नेम इज ऑफरिंग प्रेयर। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना, गंगा में पूजा करे जाओ तो गंगा पूजा करे के वास्ते गंगा के जल लेके गंगा में अर्पण करे पड़े। तो कृष्ण के पूजा करे के वास्ते, कृष्ण के प्लीज करे वास्ते कृष्ण के नाम ही उच्चारण करे पड़े। तो बोले भगवान जब साधु लोगों के प्रेयर सुनते हैं भगवान, तब भगवान एक्सेप्टेड द बॉडी ऑफ अ किंग and who cultivated the land to yield various produce, and for that reason the earth was Prithu Maharaj के, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, before the advent of King Prithu there was a great havoc of maladministration due to the vicious life of the previous king, the father of Maharaj Prithu। महाराज पृथु के जो पिता थे, मतलब वो बहुत अधार्मिक हो गए थे, दुष्ट हो गए थे, दुष्ट राजा था। तो जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या होता है, जब राजा दुष्ट होता है तो मेल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कोई भी जगह हम लोग देखेंगे कि जो लीडर रहेगा, अपने घर में हम लोग लीडर है, एक फैमिली मैन है, एक गृहस्थी में अगर पति जो है, जो घर का लीडर है,
वो खुद नहीं चैंट करेगा, वो खुद नहीं प्रसाद खाएगा, वो खुद नहीं रीडिंग करेगा, तो फिर फैमिली का क्या होगा? डिवोशनल सर्विस का मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो हैवक हो जाएगा। हाँ? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे उसके पिता सब अधर्म कर दिया था ना। द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, हु आर इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन? नेमली द सेजेस एंड द ब्राह्मणर्स। सो डिवोटीज आर सपोज टू बी इंटेलिजेंट ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिवोटीज तो भगवान के भक्ति करते हैं, इसलिए वैष्णव है, द डिवोटीज ऑफ विष्णु। तो बोला कि ब्राह्मण तो इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन not only prayed for the Lord to come down, but also to dethrone the previous king. दोनों रकम प्रार्थना करा, खाली भगवान को एडवेंट हो और अधर्म के हटाओ, मतलब जो धर्मी राजा था उसको हटा दो। It is the duty of the king to be pious and thus look after the all around welfare of the citizens. राजा के काम है ऑल राउंडर देखो। जो ऑल राउंडर देखने का मतलब क्या होगा? जनरली जो राजा होता है, जो सरकार होता है, वो क्या करता है? दे लुक एट द नीड्स ऑफ द बॉडी, दे डोंट लुक एट द नीड्स ऑफ द सोल। जब मैं ये पढ़ा, मैं सोच रहा था ना, जैसे एक मैसेज है ना, जैसे मैं सोच रहा था, जैसे एक बार फिजी में चर्चा हो रहा था ना कि फिजी शुड बिकम अ क्रिश्चियन स्टेट, राइट? तो सबको उसका कोई मतलब समझे कि आप सब कोई क्रिश्चियन हो जाए और कोई धर्म नहीं सको करे। बट क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? क्रिश्चियनिटी का मतलब है फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड, फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो राजा के काम इंश्योर करो कि प्रजा वर्ड ऑफ गॉड फॉलो करे। क्योंकि राजा के दो कोई भी जगह, आप लोग याद है ना, ये स्टोरी आप सबको याद होगा। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में ना एक टाइम एक कुत्ता इस और भगवान राम के कंप्लेन करिस कि बोले हमें एक व्यक्ति बहुत एक ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुत्ता के पिटाई कर दिया। तो भगवान राजा रहे ना, राजा राम, तो राजा के मतलब ऐसे भी नहीं खाली मनुष्य के देखो, राजा के प्रजा मतलब होल क्रिएशन जो है उसके जो अध्यक्ष में है। तो कुत्ता इस राम के लगे, बोले कि आई गॉट अ कंप्लेन। राम बोले क्या कंप्लेन है? बोले ब्राह्मण बहुत मारी से हमें, बोले ना डंडा मारी से हमें। तो राम बोले कि तो ब्राह्मण है, अब इसके कैसे पनिश करी ना, कि ब्राह्मण पनिश भी नहीं सको करे ब्राह्मण के ना। तब राम अब चिंतित हो गए कि कैसे इसके पनिश करी। तो कुत्ता बोले कौन चीज़ सोचता है ना, पनिश करो इसके। राम बोले ब्राह्मण ने कैसे पनिश करे, हम फिगर आउट करे कोशिश करता है कौन पनिशमेंट दे। तो बोले कि कुत्ता बोले हमारा लगे एक पनिशमेंट है। बोले क्या? बोले बताओ। बोले इसके मंदिर के प्रेसिडेंट बना दो। बोले इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट बना दो। अरे तो राम बोले अरे ऐसे कैसे, ये तो पनिशमेंट नहीं है, ये तो प्रमोशन है, तो गलती करे से कोई प्रधान बना देगा तो गलती है। तो कुत्ता बोले पनिशमेंट ये रही कि जब प्रजा सब उत्पात करी तो कर्म किसके लगी? लीडा के लगी। तो बोले हम भी लास्ट लाइफ में प्रेसिडेंट रहा। तो राजा के काम है कि खाली बॉडीली नीड्स नहीं देखो ना, हम लोग खाली देखता है अभी मानो तूफान आ जाए, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, तूफान आ जाए तो हम लोग राशन बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, मदद करना चाहिए। इस पर मुझे याद आता है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एक स्टोरी था ना। एक व्यक्ति एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर का डिसाइपल था, वो जा रहा था गोडिया मठ में अपने गुरु महाराज से मिलने। तो वो रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में एक भिखारी मिला, बोले मुझे कुछ दान दे दो ना। तो ये डिवोटी जो जा रहा था भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मिलने के लिए, वो डिवोटी बोला कि मैं डिवोटी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं दान देता हूँ तो केवल भगवान के सेवा में देता हूँ, आपको दान देंगे मालूम नहीं आप ना। वो व्यक्ति बोला कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, इसलिए मैं दान चाहता हूँ। तो बोले मैं आपको अगर पैसा दे देता हूँ तो तुम पता नहीं कौन सी खरीद के खाओगे, तो उसका कर्म मुझे लगेगा। तो इस प्रकार से उसको नहकार के और चला गया गोडिया मठ, अपने गुरु महाराज के आश्रम में गया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास गया, उसको दंडवत प्रणाम किया और
ये होता है ना, डिवोटीज जो कुछ अच्छा करते हैं तो गुरु महाराज को बताना चाहते हैं ना। तो ये भी गुरु महाराज को बताना चाहता है कि एक व्यक्ति से मिला और बताना चाहता है कि गुरु महाराज को कि मैं कितना अच्छा से फिलोसफी अंडरस्टैंड करता हूँ, कि मैं एकदम कर्म फ्री सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं केवल डिवोशनल सर्विस करता हूँ, कोई पाप पुण्य के झमेला में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो बताया, बोले एक व्यक्ति मिला, इसे बोले मांग रहा तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं तो केवल भगवान की सेवा में ही देता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला कि तुम अपने जो कंजूसी है उसको तुम फिलोसोफाइज कर रहे हो। तुम कंजूस हो, तुम देना नहीं चाहते हो, इसीलिए उसको फिलोसोफाइज कर रहे हो। कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी का आधार लेके आड़ में अपना जो एजेंडा है कंजूसी। भक्ति ठाकुर बोला कि तुमको 1 रुपया दे देना चाहिए था, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बोले ना, चैरिटी इज नॉट टू बी गिवन अप। चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी सन्यासी वनप्रस्थ का तो कमाई होता नहीं है, गृहस्थ का ही कमाई होता है। गृहस्थ तीनों आश्रम को देखता है, लेकिन जो डोनेशन भी मिले सन्यासी को उसमें से भी डोनेट करना चाहिए। चैरिटी ऐसा। तो पॉइंट था कि जो हम लोग के कभी कभी हम लोग अपन जो खामियां हैं उसके हम लोग कृष्णा कॉन्शियस फिलोसोफाइज करता है ना। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। वी शुड ऑलवेज बी चैरिटेबल, वी शुड ऑलवेज बी चैरिटेबल। ऑफ कोर्स हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि रोंग चीज़ में चैरिटी देगा तो उसके भी कर्म लगेगा हम लोग के ना। बट कभी कभी क्या होता है, यू मस्ट ऑल्सो लुक एट हाउ डू वी एनकरेज अदर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एनकरेज अदर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक रोज एक दिन शाम को मैं शॉप क्लोज करके निकल रहा था, तो एक व्यक्ति है हमारे हरे कृष्ण टेम्पल में आता है, एवरी संडे आता है, थोड़ा कम समझ है उसका, तो एवरी संडे को आता है, प्रसाद पाता है ना। तो उस दिन मैं शाम को जब दुकान बंद करके निकल रहा था तो वो मेरे पास आया, बोला आपके पास कोई प्रसाद नहीं है ना। तो संजा के टाइम था, जो संजा ले तो लंच वंच खा लिया जाए, जो बचा रहे हो भी फिनिश कर दो, घरे खली कंटेनर ले जाए के वास्ते ना। तो बोला कुछ प्रसाद नहीं है। तो मैंने बोला, मैं दुकान बंद करके बाहर लॉक कर दिया ना। तो मैं, अरे तुम पहले आता तो मैं आपको दुकान में से कुछ दे देता खाने के लिए ना। बोले भूख लगा है, बोले सवेरे से कुछ खाया नहीं है। तो तुरंत मुझे ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर का ये विचार याद आ गया ना। फिर मैंने क्या किया, उसको $5 निकाल के दे दिया। मैं बोला अच्छा तुम जाओ दुकान से कुछ खरीद के, मैं उसको बोला तुम जाओ दुकान से, अच्छा चाहे नूडल्स खरीद लेना या बिस्किट खरीद लेना, कुछ खरीद के खा लेना ना। तो नॉट दैट कि मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आई डिड द राइट थिंग और दिस इज़ हाउ आई शुड बी डूइंग और आई एम बेटर देन एवरीवन एल्स। बट मैं बोल रहा हूँ कि भगवान प्लीज़ होते हैं ना। एवरी लिविंग एंटिटी कोई ना कोई सफरिंग में है, तो एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ कि वो व्यक्ति कुछ नहीं तो उसको एक थोड़ा से अप्रिसिएशन आएगा। नॉट दैट आई एम द बेस्ट ऑफ द डिवोटीज, बट एटलीस्ट विल अप्रिशिएट कृष्णा ना, कि कृष्ण डिवोटी हेल्प मी। तो ही इज डेवलपिंग अप्रिसिएशन फॉर कृष्ण। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बोला अच्छा चलो तुम मैकडोनल्ड्स में मैं तुमको खरीद के देता हूँ, तुम खा लो पेट भर के, वो बात नहीं है। बट डिवोटीज को इसे सोचना चाहिए। एज डिवोटीज वी शुड बी डोंट वायलेट द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल इन अ ग्रॉस सेंस, बट यू हैव टू वेई द ऑप्शन व्हाट इज बेस्ट ना। जैसे उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना कि एक व्यक्ति कोई नेगेटिव आर्टिकल लिख दिया, प्रभुपाद के टाइम पे अमेरिका में कोई नेगेटिव आर्टिकल लिख दिया, तो डिवोटी आगे कंप्लेन किया प्रभुपाद जी को नेगेटिव आर्टिकल लिख दिया ना। फिर प्रभुपाद जी थोड़ा देर शांत रहा, फिर प्रभुपाद जी बोले अच्छा आर्टिकल में कितना बार कृष्णा लिखा है? नेगेटिव लिखा है लेकिन बार बार लिख रहा है कि हरे कृष्णा वाले ऐसे करते हैं, कृष्णा को ऐसे, कृष्णा ऐसे, कृष्णा ऐसे। तो वी शुड सी थिंग्स पॉजिटिवली। नेगेटिव देखे मांगो तो नेगेटिव दुनिया भरा है, नेगेटिव कोई खोजक नहीं है। पॉजिटिविटी इज़ व्हाट इज डिफ़िकल्ट टू फाइंड ना। हम लोग साधु संघ में आता है, हम लोग डिवोटी के एसोसिएशन में रहता है, ज़रूर है हम लोग सबके अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग समझ है, तो थोड़ा थोड़ा रबिंग हो जाए कभी कभी, बट रबिंग तो पूरा दुनिया करे। एवरीवन इज क्रिएटिंग फ्रिक्शन। हियर वी आर फोकस्ड ऑन कृष्णा। और ये तो हो ही मटेरियल वर्ल्ड में मांगो, एक्सपेक्ट करो कि डिफिकल्टीज विल हैपन। नौकरी पे प्रॉब्लम रही, ये बॉडी में हम लोग के प्रॉब्लम है, बुढ़ापा आए, हम लोग के बीमारी आए, तकलीफ हो, ये सब चीज़ तो ये एक्सपेक्टेड है। अगर आप एक्सपेक्ट करेगा, प्रभुपाद जी बोले इफ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन देन इट इज समथिंग टू वरी अबाउट, समथिंग टू वरी अबाउट।
मटेरियल वर्ल्ड के नेचर नहीं है, हैं? जैसे तूफान चले ना, तूफान चले 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 फिर शांत हो जाए, हैं? हाँ, शांत हो जाए तो फिर चीज नहीं करे लोगों। अभी मतलब वो खाली आई ऑफ द साइक्लोन है, वहाँ भी शांति है, अभी आगे मूव है। तो मटेरियल नेचर ऐसे है, मटेरियल नेचर इज गोइंग टू बी स्टॉर्मी, मटेरियल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी स्टॉर्मी। तो लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लगा रही, उससे हम लोग के घबराए कि नहीं है। और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं बोले, सब चीज़ परफेक्ट, हमारा कृष्णा कॉन्शियस परफेक्ट है, जान जाना कुछ बड़ा अभी लंगी लगेला है तो गड़बड़ है जी। तो बोले कि ब्राह्मणस लोग नॉट ओनली प्रेड फॉर द लॉर्ड टू कम डाउन बट ऑल्सो टू डिसोन द प्रीवियस किंग। इट इज द ड्यूटी ऑफ द किंग टू बी पायस, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो किंग के काम है पायस रहो एंड दस लुक आफ्टर द ऑल अराउंड वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। सो आत्मा के भी नीड देखो और शरीर के भी। Whenever there is some negligence on the part of the king in discharging his duty, the intelligent class of men must dethrone him. Intelligent class में तबे से जो 4 वर्ण है उसमें ब्राह्मण जो है वो हाया है, तबे क्षत्रिय राजा भी रेवे है, तबे कॉलोनियल सिस्टम रहा। कॉलोनियल सिस्टम वैदिक सिस्टम में से आइस रहा कि सरकार रहे, सरकार के ऊपर सेनेट रहे। सेनेट इज लाइक ब्राह्मण एडवाइजर्स, ब्राह्मण एडवाइजर्स। राजा राम भी रहा तो दशरथ महाराज भी रहा ना। तो दशरथ महाराज के मटेरियल प्रॉब्लम एक रकम से मानो रहा ना, दशरथ महाराज डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन, तो देन दशरथ महाराज कंसल्टेड द ब्राह्मणस, हिज गुरु एंड साधुस, देन दे सेड ओके यू हैव टू डू पुत्रेष्टि यज्ञ। तो जो इंटेलिजेंट क्लास है दे गिव गाइडेंस टू द किंग। द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ men however do not occupy the royal throne because they have much more important duties for the welfare of the public. ब्राह्मण राजा नहीं बने, ब्राह्मण राजा नहीं बने। ब्राह्मण के और हायर ड्यूटी है फॉर द वेलफेयर। ब्राह्मण अगर एजुकेशन नहीं करी, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह नहीं करी, देन द कॉमन मैन डजंट बिकम एनलाइटेंड। द कॉमन मैन डजंट हैव डायरेक्शन। कॉमन मैन क्या करे? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जनाः। कॉमन मैन फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मैन ना। तो ब्राह्मण लोग के काम है एग्जाम्पल सेट करो। ब्राह्मण हैव टू सेट एग्जाम्पल। आई ऑलवेज रिमेंबर, तो वीर कृष्ण महाराज बोले we as leaders, we should sit with the devotees, chant with the devotees, be with the, so that they can see the example. अगर हम लोग नहीं एग्जाम्पल करेगा, अगर हम लोग अपने तुलसी के लगे बैठ के नहीं चैन करेगा। हरिदास ठाकुर क्यों? हरिदास ठाकुर तो नाम आचार्य है, नाम आचार्य है, वो तो परफेक्ट कर ली से चांटिंग, फिर भी उसके जितना पिक्चर देखो कौन जी दिखा है, तुलसी के बगल में बैठ के चांट करे ना। तो कल हम लोग क्लास में रिमेंबर करे ना, जय पटेकर स्वामी महाराज बोले कि अगर हम लोग तुलसी के वर्शिप एवरीडे नहीं करेगा और चांटिंग नहीं करेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस हम लोग एडवांस नहीं करेगा। तुलसी की पूजा हम लोग प्रभुपाद जी स्टैंडर्ड सेट करीस रहा। प्रभुपाद जी एर्ली डेज में स्टैंडर्ड सेट करीस कि सुबह तुलसी पूजा और शाम को भी तुलसी पूजा, क्योंकि भक्ति देवी है ना, हम प्रे करे पड़ी तब भगवान के भक्ति। ऐसे नहीं आपको, आप ऐसे नहीं है जी, ऐसे नहीं कि वन फाइन डे। हम लोग कभी हिस्ट्री में बोलेगा वंस अपॉन अ टाइम राधा मोहन बिकेम एनलाइटेंड ऐसे नहीं हुए। हम लोग के प्रैक्टिस करे पड़ी, एवरीडे भगवान से प्रेयर करे पड़ी, एवरीडे तुलसी पूजा करे पड़ी, एवरीडे भगवान से भक्ति मांगे पड़ी। कुछ ही मांगो, लड़कन हम लोग कुछ मांगे तो कौन जी करे? मंगते रहे मंगते रहे मंगते रहे। कभी कभी मैया राधा मोहन बोले ध्रुव के मूड खराब करता है तू, लेकिन ध्रुव नहीं, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। तो फिर राधा मोहन बोले कि प्रभु बोले मृदंगा मंगा देना हमारा लड़का के। जब फादर अग्री हुए तो भगवान फिर श्री निकेतन से भेजाते। तो हम लोग जब प्रे करेगा, जब हम लोग डिज़ायर करेगा तब भगवान फुलफिल करे। हम लोग डिज़ायर जेन्युइन नहीं रहे तो भगवान नहीं फुलफिल करे। ऐसे हम लोग डोनेशन मांगे जाता ना, चैरिटी मांगे जाता। जब हम लोग सिंसियर रहेगा कि हाँ हम भगवान की सेवा में, हमारा विनम्रता से आई एम जेन्युइनली आस्किंग फॉर कृष्णा, then Krishna will, the Paramatma in my heart will change, the Paramatma in other person's heart. ये परमात्मा बात करी, फिर सोल के एडवाइस कर देना, दे दो। तो हम लोग के और कोई मोटिव रही कि लाओ डोनेशन निकाले ढेर से, इससे नहीं वर्क करे, बिकॉज तुम्हारा परमात्मा तुम्हारा इंटेंशन जान गया ना।
उनके इंटेंशन जब प्योर रही तो भगवान अरेंजमेंट कर दी। तो बोले जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन रहे, however do not occupy the royal throne because they have much more important duties for the welfare of public. Instead of occupying the royal throne, they prayed for the incarnation of the Lord, and the Lord came as Maharaj Prithu. तो अपन लाइफ में कोई भी सिचुएशन रहे तो सिचुएशन के तबे से कॉमनली भी आदमी बोले ना, कानून के हाथ में नहीं ले लो। जब अगर कोई व्यक्ति कानून अपन हाथ में, कोई हमारे संग अत्याचार के, हम भी उसके, तब हम लोग भी पनिशबल हो जाता कि नहीं? तब पुलिस आई तो बोली तुम कानून के काय हाथ में लिया। तो इसे इंटेलिजेंट मैन कौन सी करे है, वो प्रे करे। ये लोग सबको प्रे करे इस कृष्णा के कि प्लीज हेल्प करेक्ट द सिचुएशन, हेल्प करेक्ट द सिचुएशन। Instead of real intelligent men or qualified brahmanas never aspire for political post. Maharaj Prithu excavated many products from the earth, and thus not only did the citizens become happy to have such a good king, but the complete sight of the earth also became beautiful and attractive. ना तो फिर पृथु महाराज क्या करिस रहा? पृथु महाराज भगवान के प्लीज करे के वास्ते कौन जी करिस रहा है? पृथु महाराज तो ऑलरेडी भगवान के इनकारनेशन है, बट बिकॉज ही केम एज अ किंग देयरफॉर ही हैज टू सेट एग्जांपल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ना। तो पृथु महाराज क्या किया था? पृथु महाराज परफॉर्म यज्ञस, 99 यज्ञ कर दिस रहा ना। 100 यज्ञ कोई करे तो इंद्र बन जाए। तो ही व्हेन ही वाज डूइंग द 100th वन, तो इंद्र आए के यज्ञ के घोड़ा चराए के लेके चल दिस रहा ना। तो पृथु महाराज अगेन बाय एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जहाँ प्रभुपाद जी आगे भागवतम में जब डिटेल स्टोरी बताएंगे, देन प्रभुपाद से द लीडर हैज़ टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो सतयुग के बात है, तो उस समय यज्ञ करते थे, जब पृथु महाराज था उस समय यज्ञ होता था, तो ही डिड यज्ञ टू प्लीज विष्णु। तो जब इसे कृष्ण कॉन्शियसनेस करते थे तो बोला कि पूरा पृथ्वी जो अधार्मिक राजाओं के प्रभाव से क्या होता है, उपज सब कम होने लगता है। कोई भी जगह पे जहाँ पे अधर्म होगा वहाँ पे धीरे धीरे सब साधारण भाषा में हम लोग कह सकते हैं सब बरकत चला जाएगा। बरकत तो उर्दू वर्ड है, बट नहने का मतलब कि जो ओपुलेंस जो है, श्री विजय भूतिर, ये सब चला जाएगा। तो फैमिली में भी ऐसे होता है। अगर एक छोटा सा फैमिली रहे, एक न्यूक्लियर फैमिली भी रहे, बट अगर हस्बैंड वाइफ में कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं रहे, झगड़ा झंझट हुई तो बोले लक्ष्मी रुष्ट होके चला जाती है वहाँ से। वही रकम एक्सटेंडेड फैमिली में है, वही रकम कम्युनिटी में है, वही रकम एसोसिएशंस में है, वही रकम सारा दुनिया में है। प्रभु जी बोला कि एफर्ट है यूनाइटेड नेशंस का, ऑल द नेशंस गेट यूनाइटेड, लेकिन यूनाइट नहीं हो पाते। अगर यूनाइट हो जाए तो द होल अर्थ विल फ्लोरिश अगेन। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में बताते हैं कि जो भगवान को सब लोग जीवन दे देंगे तो जो किंगडम ऑफ गॉड जो है वो यहीं पर मैनिफेस्ट हो जाएगा। मतलब इट विल ऑल बिकम हेवन, मतलब इट विल बिकम हेवनली, मतलब भूख नहीं रहेगा, प्यास नहीं रहेगा, नो वन इज स्टार्विंग, नो वन इज फाइटिंग, everyone is thinking how there is fight, there is spiritual transcendental fight. How do we serve Krishna better? We don't envy one another, but we love one another, we serve with one another for spiritual progress. How do we inspire, how do we motivate, how do we... गोपीज लोग क्या करते हैं? गोपीज लोग एक दूसरे को आगे करते हैं, you serve, you serve, you serve। गोपी लोग ऐसे नहीं करते हटो हम आगे जाकर हटो तो हम लोग के स्वभाव ऐसे डेवलप करेंगे। और इसके डेवलप करने के वास्ते मुझे एवरी डे आई थिंक मोस्ट पावरफुल मैसेज दैट यू कैन टेक फ्रॉम टुडेज वर्स इज वी हैव टू लर्न टू प्रे, एंड यू हैव टू प्रे एवरी डे। You have to pray every day. You have to pray to Krishna every day. Krishna, please help me control my mind. Krishna, please give me the ability to follow the four regulative principles. Morning में जब माला उठाओ chant करे के वास्ते तो pray to Krishna, pray to Radha Rani, pray to the holy name that I can chant your name very, very nicely, offenselessly I can chant this name. ये prayer every day के बात है. Every day हम लोग नहीं करेगा, हम लोग grow नहीं होएगा. तो every day we must
pray to Krishna. Then we become Vaishnavas. ठीक है? So any questions, any comments? Sriniketan Prabhu, you would like to comment? बहुत अच्छा पॉइंट बताया अबाउट प्रेज कि प्रेज कितना पावरफुल है। एक्चुअली ये लोग रोज पावरफुल प्रेज बोलता है, लेकिन हम लोग उसके मतलब भी काफ़ी कम नहीं है, जैसे हम ये करता है बहुत तुलसी प्रेज इतना पावरफुल है। I overcome my repeated obeisances to Tulsi Devi, who is very dear to Lord Krishna. And we playing, Sampradaya ki I beg to become ऐसा वक्त एक्चुअली प्रेयर में है कि हमें ब्रजवासी बनाए लो। इतना पावरफुल है कि if you just खाली यही लोगन के ट्रांसलेशन पढ़ लो, हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे। Exactly. Actually already realized प्रेज है सर। जैसे आप बोला रिपीट करो, तो जितना हम लोग के 6 गोस्वामी लोग हैं, सत गोस्वामी है, जितना हम लोग की परंपरा में गुरु लोग हैं, सब यही प्रिया लोग हैं। जो लोग मतलब जनता का मतलब जनता का जब लोग प्रेयर बोलता है तो वो हार्ट से आता है। अभी हम मोस्ट लाइकली करता है बिकॉज हम लोग के सिस्टम में है ये, हम लोग के मॉर्निंग में साधना करेंगे करता है, बट काफ़ी टाइम पे लोग उसके मीनिंग पे फोकस नहीं करते। और गुरु प्रिया है, गुरु पूजा करता है, the lotus feet of the spiritual master is the best means of spiritual advancement, ये सब चीज़ हम लोग के गुरु के टीचिंग्स है, the lotus path of the spiritual master टीचिंग्स हाँ हम लोग इसको फॉलो करेंगे। हम कभी पूछता है कि कैसे हम हो सकता है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सिंपल है, अगर वो प्रेयर खाली गुरु पूजा के प्रेयर खाली बोलेगा या उठा के पढ़ेगा, उसमें ही आंसर है। एग्जैक्टली। तो यही सब प्रेयर की खाली हम लोग की अंडरस्टैंड करेंगे और खाली उसके ट्रांसलेशन पढ़ लो बस। बहुत पावरफुल। हमको जो वैष्णव सॉन्ग्स है वेरी पावरफुल, जो प्रभुपाद जी मॉर्निंग प्रेयर्स दिया है वो बहुत पावरफुल है। और श्रीनिकेतन प्रभु जैसे बोला, इम्पोर्टेंट बात है कि लेट्स नॉट जस्ट रिपीट बट उसके मीनिंग भी समझो। तो जब मीनिंग समझेगा तब से मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन यू आर सिंगिंग दिस प्रेयर्स यू सिंग विद मेडिटेशन को व्हेन यू आर थिंकिंग, एक एक वर्ड बोलोगे तो उसके हम लोग मीनिंग जब जानेगा तो हम लोग गाएगा भी तो बहुत अच्छा लगी ना। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसाद नागति कुतोपि ध्यायंस्तु अंस्तस्या यशस्त्री संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मैं मीनिंग मांगो जानो। तुलसी प्रयाग के ऊपर एक दिन रामचंद्र प्रभु क्लास दिस रहा, रामचंद्र प्रभु बोले बाप रे बाप, हम लोग भगवान से कौन सी मांगता है ना, ब्रज राधा कृष्णा सेवा पर बहुत डीप है, बहुत एडवांस है। तब से कभी कभी आदमी लोग बोले कि हरे कृष्णा लोग खाली बेसिक जाने हैं। काहे आदमी ऐसे बोले? बिकॉज रियली में कभी कभी हम लोग खाली बेसिक ही जानता है, बिकॉज कि हम लोग खाली पैरट लेनिंग करा है, तो वो गाता है लेकिन उसके मतलब नहीं जानता। बट ऐसे नहीं है कि हरे कृष्णा में केवल बेसिक लेनिंग है, बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है। इट्स अ मैटर ऑफ डाइविंग इनटू इट ना। तो नहीं तो हम लोग के सिचुएशन है, डिस्क्राइब मेरे मन में एग्जांपल है ना, हम लोग सबको इन पैरट माफित है, तो हम लोग बोलता है राम राम राम, जैसे बिल्ली हम लोग के गठी दबाई फिर उल्टा राम नहीं निकले के जब हम लोग मतलब नहीं समझेगा तब। एवरी प्रेयर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे नरसिंह प्रेयर हम लोग गाता है ना, हम लोग गाता है कि हम लोग का कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख आवे, कोई डर लगे तो वो नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद। तो आर यू एबल टू डज द मीनिंग्स कम इनटू योर माइंड? आर यू एबल टू विजुअलाइज ना? पिक्चर हो सकता है कि नरसिंह भगवान का रूप है, इसे सब। तो ये दिस इज द डेप्थ ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो इट इज़ वेरी पावरफुल। और हम लोग के नया कुछ करना नहीं, नया कुछ बनाना है नहीं, सब बना है, बनाना नहीं है। अच्छा, एक व्यक्ति कोई कथा सुन रहा है। ओ राहुल अरविंद चंद, राधाकांत प्रभु है। It is okay if we see negativity from outside world, at least we can understand. But why do we have so much negativity from within? Devotees judging each other, criticizing and creating an atmosphere where people find it hard as
is acceptance. एक्चुअली हम लोग कल जो प्रहलाद महाराज के टीचिंग्स पढ़ रहे थे, तो आई थिंक दिस पॉइंट हम लोगों ने थोड़ा सा टच किया था ना. प्रभुपाद जी बोले what is how can you recognize another pure devotee? कैसे सो को एक पवित्र भक्त के recognize करें? By listening, okay. Prabhupada ji बोले it takes a pure devotee to recognize another pure devotee. So it takes a Vaishnav to recognize a Vaishnav. I cannot see you as Vaishnav because I am not Vaishnav. I see of all the faults because the faults lies in my eyes. The beauty is in the eye of the beholder. So similarly, the faults actually lies in my eyes. Therefore, I am seeing. We take good example of Srila Prabhupada. We ask, प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा है कि डिवोटीज दूसरे को जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करते हैं. डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एनी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट प्रभुपाद वेंट थ्रू विद द गौड़िया मठ? बट प्रभुपाद क्या किया? गुरुमुखा पद्मावाक्या चिते ते कोरिया क्या अरना कोरिह मने आशा. Prabhupada just simply meditated on the words of his spiritual master. Prabhupada जी 1922 में भक्तिदास ठाकुर को मिला, 1933 में इनिशिएशन लिया, फिर 1964-5 में 1965 में तब 33, 43, 44, 33, 43, 53, 63, 32 years after initiation, 32 years, Prabhupada meditated on the instructions of his Guru Maharaj. बाहर हम लोग के चित्त पे, क्योंकि हम लोग मटेरियल दृष्टि से, मटेरियल एसोसिएशन हमारा इतना पावरफुल है, तो हम लोग के सब कुछ मटेरियल सेंस में दिखाए लगा है. हम लोग के मटेरियल सेंस से नहीं देखेंगे. दिव्य ज्ञान, हम लोग के दिव्य दृष्टि, ओम अज्ञान तिमिरंत चक्षुष उन्मीलितम. हम लोग के भगवान कृष्ण भी अर्जुन के बोले इसकी तुम विराट रूप ये आंखों से नहीं देख पाएगा. आई विल गिव यू ट्रांसेंडेंटल विजन. तो फॉल्ट फाइंडिंग तो सबके नेचर है. फॉल्ट फाइंडिंग सबके नेचर है. एक्चुअली देर इज एक्चुअली बहुत पावरफुल क्वेश्चन भी पूछ दिया है प्रभु जी ने. द पॉइंट इज वी आर ऑल्सो एक्चुअली जजिंग अदर्स. हम लोग खुद दूसरे को जज कर रहे हैं. हम लोग दूसरे के बारे में इमेज बना रहे हैं. मैं सोच रहा हूँ कि सुमुखा प्रभु डिवोटी है तो ऐसे बिहेव करना चाहिए उसको, या ये प्रभु राधा मोहन प्रभु डिवोटी है तो उसको ऐसे बात करना चाहिए. Am I not imposing myself onto you? I'm imposing myself. I'm imposing my thoughts onto you. प्रभुपाद जी के खूबी क्या रहा? As it is. Whatever is Krishna's thought, that is what we all want to come upon all of us. I can guarantee you, no matter how hard I try to work, that Radha Mohan does not criticize me, Sumukha doesn't criticize me, Prabhuji doesn't judge me. There is no external way that I can stop you from doing that. If only I became a sincere devotee, your heart will change, your perspective will change towards me. आप बोलेगा कि हम bias है, हम bias जब हम behave करेगा bias, then your judgment is correct. I am biased. But if I behave neutral, I behave devoted to Krishna, then you will see I am devoted to Krishna. It takes one. It takes one. It just takes, जैसे उस दिन हम लोग पढ़ा रहा ना कि फूड पॉइजनिंग है. फूड में खाली एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन छोड़ दो, the whole food becomes poisonous. Glass of milk touched by the lips of a serpent, the milk becomes poisonous. Right? This is negative example. What is the positive example? Positive example Prabhupada mention करते हैं अपने books में. कोई बताएगा what is the positive example? Just by a drop of poison, the whole food becomes poisonous.
अभी पनीर की सब्जी बनाओगे, उसमें एक ड्रॉप पॉइजन छोड़ दो, फिर वो पनीर नहीं रह जाएगा, वो जहर हो जाएगा। पॉजिटिव एग्जाम्पल क्या है? one moment's pure association of a pure devotee, will liberate us. What else? Very common example. When we offer, okay, that's a good example too. भगवान को हम लोग कटोरी में ऑफर करते हैं, फिर उसको हंडी में जब डालते हैं तो everything becomes offered. The example मैं सोच रहा था, common मेरे मन में आ रहा था, it just takes one sandalwood tree in a forest to give a good smell to the whole forest. This is my perspective, my personal view, my personal opinion. If only I became a better devotee, the whole community will improve. There's no way I can make others improve. ना? भगवान नहीं कोई के improve कर पाई से। भगवान बड़ी सब बोले don't eat the forbidden apple. एंड मैंने फिर भी खा ली। तो बहुत पावरफुल एसोसिएशन मांगे हैं। और yesterday I also mentioned कि हम लोग रियलाइज नहीं करता है बैड एसोसिएशन और गुड एसोसिएशन इस सटल है, कैसे माइंड हम लोग के पोल्यूट हो जाए हम लोग नहीं जान पाएगा। और कैसे डिवोटी के एसोसिएशन में अभी आप लोग जितना जन यहाँ बैठा है, आप लोग बताओ, व्हेन यू रेड प्रभुपाद's बुक्स और व्हेन यू केम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कैन यू रिमेंबर दैट एग्जैक्ट मोमेंट, दैट एग्जैक्ट सेकेंड जब तुम्हारा माइंड ऐसे स्विच ओवर है कि आई विल बिकम अ डिवोटी, या आई विल टेक टू प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस? कोई के याद है दैट एग्जैक्ट मोमेंट, एकदम एग्जैक्ट मोमेंट, दैट रिफाइंड टू द सेकंड और वन लव मात्र, वो पॉइंट याद है कोई के? नहीं याद है ना, मुझे भी नहीं याद है। बट एसोसिएशन के इम्पैक्ट कौन सी रहा कि हम लोग के माइंड एक्सेप्ट करे लगा कृष्ण कॉन्शियसनेस, माइंड बुद्धि इंटेलिजेंस देखे लगा कि दिस इज माय बेनिफिट। तो आई विल से कि हम लोग इनकी एसोसिएशंस जो है ना ये पावरफुल है। तो यू एंड आई हैव टू बी इन गुड एसोसिएशन, यू एंड आई हैव टू हैव गुड प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। It only took one person from the Gaudiya Math who was not given anything. Everyone took the temples, everyone took the disciples. Prabhupada only had the Bhagavatam. And what do we have? The biggest branch of Gaudiya Math is ISKCON. The biggest branch of Bhaktisiddhanta Thakur's mission is ISKCON today. But it took only one man. And what did he do? Prabhupada always used to say, somebody asked Prabhupada, Prabhupada, what did you feel, or how was it when you were alone? Prabhupada said, I was never alone. My Guru Maharaj was always with me. My Guru Maharaj is always with me. So there is, Prabhuji ka point hai, looking at an activity from outside. I still feel when you want to go and look at things from outside, you actually, as soon as you go out, you go into the realm of Maya, material world. और हम लोग सबके वही बात है ना, हम लोग के जैसे हम लोग when we become intelligent, right? अभी हम बोलेगा अच्छा राधा मोहन प्रभु is very intelligent. What am I basing his intelligence on? बहुत educated है ना, बहुत experience है, मतलब हम लोग के intelligence के जो development है, it is getting educated by material things और बाय स्पिरिचुअल थिंग्स। जब हम लोग मटेरियल थिंग्स से एजुकेट होता है तो हम लोग मटेरियल रकम से मेजर करता है, राइट? जैसे भी हम जानता है कि धनुष बाण लेके खड़ा है तो कौन है, जब पिक्चर देखेगा कि धनुष बाण लेके खड़ा है तो इंटेलिजेंस में इंफॉर्मेशन है कि धनुष बाण राम के लगे। भागवतम में से हम लोग पढ़ा है, सुना है, तो दैट्स हाउ द इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड। नाउ फ्रॉम सेम काइंड ऑफ नॉलेज हम लोग के मटेरियल नॉलेज मिला, हम लोग चाहे स्कूल में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कहीं कॉर्पोरेट एजुकेशन करा, कुछ भी करा, तो हम लोग के इंटेलिजेंस क्रिएट करी से। अब वही ला इंटेलिजेंस से हम लोग देखता है सुमुखा तुम ऐसे है, नित्या तुम ऐसे है, सिद्धांत तुम ऐसे है, प्रबोधानंद तुम ऐसे। हम तुम्हें एक आकार दिया है, एक जजमेंट जो हम क्या है, वो जजमेंट किसके ऊपर बेस्ड है? हम ऊपर बेस्ड है। हमारे हेड में कौन सी है?
सो दैट्स द हम प्रोट्रूड करेगा उसके ऊपर. तबे से when you have transcendental knowledge, we dive deep in Krishna consciousness, then actually you start having spiritual perspective. तो फिर ऐसे भी रहे ना कि sometimes you see someone is doing some ऐसे साधु लोग हैं ना, साधु लोग देखे कि हम लोग सब संसार के एक्टिविटी में लगा है, हम लोग जीव हत्या करता है, फॉर रिलेटिव प्रिंसिपल ने फॉलो करता है, दे स्टिल कम टू अस. का है बिकॉज उन लोगों के इंटेलिजेंस, उन लोगों के हम लोग के ऊपर क्या इमेज पोस्ट करे कि ये लोग बेचारा लोग इग्नोरेंस में है. दे नीड गाइडेंस, दे नीड कंपैशन. तो उन लोग तब कंपैशन करे ना. आपके लगे कि यू नीड कंपैशन? डू यू फील you need compassion? Absolutely not. I'm fine, I'm earning, I'm eating, I'm enjoying, I don't need anyone's compassion. But साधु क्या है? साधु spiritual knowledge से देखे कि तुम अपन body में satisfied होगा, but the spirit is suffering. So with that perspective, then they come to give you Krishna consciousness. इससे हम लोग गए वहाँ पे प्रोग्राम करें, तो मेरा भाई गया था, ट्रेन लोग में इन्वाइट किया था, तो लोग गए थे. तो जो से सुना नहीं बोला. हम लोग रेकी गया, कैंपिंग रहा स्कॉन. तो मेरा भाई गया था, मेरा भाई और उनका भी दोस्त इसके साथ में गए थे. तो डिवोटी ढेर डिवोटी थे. तो इसे कभी कोई 4 डिवोटी मेरा भाई और डिवोटी को हेरा जाए, तो मुझे कहाँ चला गया ये लोग चारों ना. तो जैसे एंड में लगा ना, तुम्हें पता लगा मुझे तुम कहाँ चला गया. तो मेरा भाई तो बताया था मुझको ना, बोले हम लोग कह सिगरेट पिए, हम लोग तो हैबिट है ना. तो फिर हम देखा कि और जाने में यहाँ भी चला गया ग्रुप में. हम लोग बोले आए उसको भी एकाध दे रहे, जैसे हस्बैंड लोग रेट के वाइफ आई हस्बैंड संज्ञा है कि लोग कह रहे ना. तो हम लोग कैसे तुम लोग जान पाएंगे वो भी पिए है ना. कैसे तुम राइट हस्बैंड पकड़ा ना. गई जी तो 4 बजे चला गया हम लोग से. कैसे तुम लोग जान पाया. कुछ वो अपन तस्वीर देखे कि हम गाँव की बोला ऐसे करिए. अभी साहब झूठे कैसे हाथ में जाने हम राजा. तो ये संगत ऐसे हमारे भैया छोटा गांजा पिए, तो वो जाने गजड़ी लोग कौन है ना. तो हमारे घर टेलर में गांजा पिए था और गांजा बेचता भी रहा. तो सोचा कैसे पिए. तो हमें कि हमारे फैमिली में एक जना गांजा पिए, हमें कह जानता गांजा पे क्या हुआ. वो बोले उसके जो तार जही से ना FEL लाइन उस पर कैनवस टंगा रही से उल्टा इसे जाना तुम कैनवस. हमें नहीं पता. हम गया लमासा में काम करेगा, पूछा कैसे पूछा. हमने आप जानता है कि कुछ गांजा जहाँ भी कैसे लगे. बोला उसी घर के कैनवस टंगा रही. हम कॉन्फर्म कर लेते हम लोग क्या करता करे हुए जाने ना. फिर भी अभी बहुत साल पहले लेक्चर सुना रहा हूँ या टेम्पल में सुना रहा. बोले नरसिंह का कथा होता रहा, तो प्रहलाद भक्त बन गए, तो उसके फादर तर गए ना, लिबरेट हो गए उसके फादर. तो ये कथा कोई पोस्टर सुन ली, पोस्टर सुन ली. तो उन्हीं से उसके अगर वहाँ भी लड़का हो जी और भक्त निकल जी तो हम ही तर जाएगा. तो सुंदर से डिवोटी बन के साड़ी में तिरक लगाया क्या मंदिर बैठ के कथा सुने लगा. वो भी ना तभी से ताके ऐसे करके ना कि कोई अगर मिल जाए हमें, वो नहीं मांगे वो धंधा छोड़े, वो खाली मांगे बच्चा जो भक्त हो जाए. तो ऐसे बैठा ऐसे ताके 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 एक जगह पे देखा ही वो भी उसके ताकत रहा. तो ये राइट. तो सिलसिलेट विद द गाय शी गॉट प्रेग्नेंट. आचार्य फिर बताया क्लास में कि उजन आइस रहा वो भी ऐसा खोजे कि अभी मिल जाए हमें एक रात के लिए बस. ये तो भाई ना कि जैसे रही हो तुम, भगवान मेरे को तुम मिला ही तुम्हें मेरे को. अगर तुम सोचे कला हमसे अच्छा डिवोटी नहीं, तुम सोचे कला हम कोई हमारा अंदर तुम्हारे अंदर खामियां रही, तुम वही खाना दूसरा देखी होगी ना. ये भी नहीं ये बोले हरी बोले गोश्त नहीं खाए ना, हम अपने गोश्त खाई तो खांस के छोड़े गोश्त खुद नहीं छोड़ पाए, कैसे दूसरा का एक्सपेक्ट करिए ना. तो भाई ये मंदिर में क्रिटिसाइज करे भावना सही हो अगर तो तुम्हें करियो तो तुम्हारे अंदर भी वो चीज़ है फॉल्ट. तुम्हारे अंदर वो फॉल्ट है तभी दूसरे वो फॉल्ट तुम्हें दिखाएंगे फॉल्ट है. मुझ से आगे नहीं करो. Exactly. You chant Hare Krishna for your own purification.
you come to the devotees association to learn something from them. बुराइयाँ खोजे के तो बाहर जाओ भैया, then you are in the wrong place. दुनिया बुराइयाँ से भरा है. और ऐसे भी प्रभुपाद जी बोले, the worst of the devotee is better than the best of the कर्मी. जिसके हम लोग वैसे तो डिवोटी कोई बेकार नहीं है, बट इसे एक बोले का मतलब ना, हम बोलता है ये बेकार डिवोटी है, बट बेकार डिवोटी भी संसार के सबसे अच्छा कर्मी से भी अच्छा है. काहे? बिकॉज वो कृष्ण के शेल्टर ले ली से, कृष्ण के शेल्टर ले ली से. जैसे जन्म प्रभु एक अप्रिसिएशन हरदम करे ना, जन्म प्रभु की एक अप्रिसिएशन है कि फिजी में केवल एक ही आदिवासी है जो जाने हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जम्बवन प्रभु ना. उसके एसोसिएशन के कारण बेचारा कभी रहे कभी नहीं रहे ना. फैमिली में अपन जाए तो फैमिली सब बोली ई सालू बेनू ना कि तुम वेजिटेरियन हो गया, तुम कुछ खाता नहीं है, ही नहीं उन्हें, और फिर एसोसिएशन के प्रभाव से उल्टा पुल्टा भी कर दे कभी कभी ना. बट नेवरदलेस अगर कोई आदिवासी के जाके पूछो हु इज कृष्णा, only he will say Krishna is the supreme personality of God. Isn't that great? Isn't that a very rare thing? Na? Actually, Krishna is very kind. Chaitanya Mahaprabhu is very kind. Chaitanya Mahaprabhu will deliver him for that. कि एटलीस्ट समझे है, कितना प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए वो अलग बात है, लेकिन ये समझ पे भी आना. और मे बी शायद हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, लेकिन हम लोग के भी फुल फेथ नहीं है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. सो आई थिंक अगर हम लोग क्रिटिक्स में इन्वॉल्व होगा, ये होगा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आई डोंट हैव द टाइम. जिसको करना है वो करेगा, बट लेट्स केयर अबाउट आवर ओन सेल्फ. जन्म सार्थक करी कर पर उपकार. अगर हम लोग के प्रभुपाद जी के मिशन में कंट्रीब्यूट करे के है तो नंबर 1 इज वी बिकम जन्म सार्थक. लेट्स फोकस ऑन आवर सेल्फ. एक जगह अगर हम ही लोग आगी रकम बरे लगेगा तो फिर पूरा जंगल के जरा लेगा. तो अगर हम ही लोग नहीं बरेगा तो फिर कैसे करेगा ना. तो दिस इज ऑल आवर एफर्ट कि हम लोग बुराइयाँ तो सब लोग देखे, ट्राई एंड सी गुड थिंग्स इन अदर्स प्लीज़. डिफ़िकल्ट है, अप्रिसिएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, अप्रिसिएशन बहुत डिफ़िकल्ट है. और दूसरा चीज़ है कि हम लोग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो यहाँ तो सब कोई वॉलंटरी, कोई पे तो करा नहीं गए. राधा मोहन के हम लोग पे नहीं करता है टू अटेंड द प्रोग्राम. बट मैं ऐसे राधा मोहन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. मैं राधा मोहन से कल परसों बात कर रहा था ना, कल आई थिंक परसों हम बात कर रहे थे. राधा मोहन प्रभु वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, और वो काम करने में तो थोड़ा डिवोटीज़ के एसोसिएशन से दूर हो गया ना. तो फिर आई डोंट नो वेयर डिड वी मीट, हमको कहीं पे मिला तो मैं बोला यहाँ प्रोग्राम हुए है आओ. देन प्रभु से ओके आई विल कम. ही आई थिंक यू ओनली अटेंडेड 2 programs. या 2 programs डिवोटी लोगों के साथ में, जैसे मतलब झूरा लकड़ी है ना, जैसे डिवोटी लोगों के साथ में फिर बढ़ गया. तो अब नहीं, ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं बोला कि घर पर कर नहीं रहा था, ये कर रहा था, बट जस्ट बिकमिंग एन एसोसिएट डिवोटी. देन ही मेड अ डिसीजन, अपन कंपनी से बोला कि ट्रांसफर मी, आई वांट टू गो बैक होम, मैं कैंप में नहीं रहूँगा ऐसे. एंड हिज सिचुएशन इज चेंज. तो डिज़ायर ना, एसोसिएशन अच्छा एसोसिएशन किया तो उसके डिज़ायर चेंज हो गया. नहीं तो फिर हम के लाइफ में ऐसे ही लगे कि ओ दूसरा डिवोटी इतना धनी है, दूसरा डिवोटी के लगे ही है, दूसरा डिवोटी हम भी मांगो, हम भी काम करिए, हम भी घर द्वार बनाइए. से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनाना चाहिए, बट जो भी कुछ बन रहा है, बट देन वी डोंट ओवर एंडेवर ना. ओवर एंडेवर करने से क्या होगा, और टाइम जा रहा है. कोरोना वायरस हम लोग के एक और एक एक्सपीरियंस दे दिया ना, एनीवन कैन डाई एनी टाइम. ऐसे तो स्क्रिप्चर में पहले से लिखा है, बट हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर रहा ना कि कोई भी टाइम सबको मर जाए. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट. और आई कैन अश्योर यू वन थिंग, ये क्रिटिसिज्म जो है, जजमेंटल रहना जो है, और इवन विद इन आवर सोसाइटी थिंग्स विल वर्सन. इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव. कलयुग इज प्रोग्रेसिंग, सो दीज थिंग्स विल वर्सन. ये सब खराब होगा. तो डायरेक्शन ही रहेगा तो हम लोग का है अपन माइंड इसमें ओवर एंटेंगल करके अपन कृष्णा कॉन्शियसनेस खराब करो. अपन अगर मैं अपना कृष्णा कॉन्शियस खराब करूँगा, आई एम स्पॉइलिंग इट फॉर यू एज वेल. सही बात कि नहीं? अगर मेरा कृष्णा कॉन्शियस खराब रहेगा
तो क्या होगा, आप आओगे कथा सुनने के लिए, मेरा जो खराब सटल माइंड है वो आपके ऊपर प्रोट्रूड हो जाएगा, आप मेरे संग में रहोगे, आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन वैलिड है, प्रभु जी का क्वेश्चन अच्छा है कि कहा है इसे कहा है, बट अगेन आई विल से यू आर नॉट, you are actually, as soon as you go and see things from outside, you actually detach yourself from spirituality. तो संसार की ओर से नहीं देखो, संसार में बोला जाए कि ऊपर उठ के तब देखो ना इसे। वैष्णव ऑपोजिट है, वैष्णव लोग ऊपर उठ के देखे तो लोग देखे कि द होल वर्ल्ड इज सफरिंग एंड देयरफॉर आई शुड हेल्प कंट्रीब्यूट, आई शुड कंट्रीब्यूट टू मेक अ डिफरेंस ना। तो अगर डिवोटी लोग सब आई थिंक हम लोग के सबके सोचे चाहिए, What can I give to ISKCON? What can I give to Krishna? कृष्णा तो सब कुछ देते हैं, not what can I take from Krishna ना। आप फील करते हैं कि डिवोटीज क्रिटिसाइज करते हैं, you come and be the change agent, you be the agent for the change you want, you come and not criticize others, others will. If somebody is criticizing someone at an ordinary level, if somebody is criticizing someone and you are not interested, just say Hare Krishna Prabhuji, please forgive me, I don't have any information about these things, therefore I'd like to keep away. I think you have to do honest communication. कभी कभी हम लोग इसे बोलता है कि अब कैसे बोलते रहा हम चुप पे रहा, बट साइलेंट हियरिंग इज ऑल्सो बीइंग पार्टी टू द प्रॉब्लम। तो आई थिंक कभी कभी इसे बोले से कि प्रभु जी हम तो बहुत छोटा है टू बी पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, एक्सक्यूज मी, बोले ला के अपन लाइन पे आए जी, अपने अपने लाइन पे आए जी, you don't have to give a Bhagavatam class for it. Okay, so any other point? No? So we should take some mercy, take some prasadam. और आप सभी लोगों को याद दिला दे, हम लोग लास्ट वीक इष्ट गोष्ठी किए थे, and then we have done up some draft service